Hi. Uh, Students, we have discussed about the different actions of corticosteroids on fat, protein, and carbohydrate, protein, and fat metabolism. But there are different organs on which it has some metabolic effects. We will discuss in short that you have to read from your book, but we will discuss in short uh, this cortisol. What is the effect of cortisol or corticosteroids? The main hormone is cortisol. What is its effect on bone? So it decreases the bone formation and increases bone resorption. Okay, so the bone formation, you have osteoblast, and for bone resorption you have osteoclast cells in the bone. So it promotes the formation of osteoclasts and it inhibits the formation of the osteoblast. In this way, it can decrease the bone formation and increase the bone resorption. The connective tissues, okay, the excess of cortisol can decrease the elasticity of the blood vessels. It makes the blood vessel thin so that there can be rupture of the blood vessels and there can be hemorrhage. It maintains the cardiac output and increases the arterial tone and decreases the endothelial permeability. So it maintains the cardiac output. See, if it is skeletal muscle, if it is cardiac muscle, it will definitely increase the efficiency of these muscles. But of course, after some time, since the protein of the muscles is being used up in the Cody cycle for gluconeogenesis, that's why धीरे धीरे मसल का एट्रोफी होना शुरू हो जाएगा. Of course, but the muscle will be efficient till it leaves. After it dies, nothing. But till it leaves, the efficiency will be good. So it maintains the cardiac output. It inhibits the inflammatory and immune response. Okay, so we can use this cortisol, or the body uses this cortisol as anti-inflammatory and anti-immune response. ओके, ऑटो इम्यून डिजीज से बचाता है, इन्फ्लामेशन होने से बचाता है. जब इसी का जब हम लोग ड्रग यूज करते हैं, कॉर्टिसोल देते हैं, तो वो एंटी इन्फ्लामेटरी पर्पस के लिए देते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट के लिए देते हैं. इट फैसिलिटेट्स द मैच्योरेशन ऑफ द फीटस लंग. फीटस लंग को मैच्योर करने में बड़ा हेल्प करता है. it increases the GFR, glomerular filtration rate. It increases the GFR and free water clearance. It antagonizes, remember my word, it antagonizes the ADH, antidiuretic hormone, and that's why there is a diuresis or free water clearance, right? It modulates the emotional tone and wakefulness. It stimulates RAS, reticular activating system, and that is important for your wakefulness. Okay, and it modulates your emotional tone, your moods. If there is a deficiency of cortisol, there will be excess anxiety. You cannot control your mood. But if there is a sufficient amount of cortisol, you can control your anxiety, you can control your stress. It maintains muscle function, decreases muscle mass, as I told you. So we will see, we don't have to go in detail, but just we will see the overview of this effect on muscle. It increases the contractility and the work performance. Why? Because it increases the neurotransmitter synthesis, that is acetylcholine at the myoneuronal junction. इसीलिए वहां का एक्टिविटी को बढ़ा देता है. कार्डियक में कैसे एफिशिएंसी बढ़ाएगा? कार्डियक में कैसे एफिशिएंसी बढ़ाएगा? कार्डियक में सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, इसको वो स्टिमुलेट करता है. और वी नो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कहाँ होता है? कार्डियक मसल्स पे होता है.
और हमने बताया था अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 2 को अगर एक्टिवेट करोगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक सिस्टम तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इसको वो स्टिमुलेट करता है और कार्डियक एफिशिएंसी को बढ़ाता है। डिक्रीज मसल मास, लेकिन क्रोनिक यूज में क्या होगा, मसल मास डिक्रीज करेगा, उसका स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन हमारा जा रहा है, मसल प्रोटीन को यूज कर रहा है कोडी साइकिल में टू फॉर्म ग्लूकोज वाया फॉर्मेशन वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। Effects on bone. It transiently increases osteoclastic activity. That means osteoclast means the cells which destroys the bone. The cells which destroys the bone is osteoclast. ठीक है? And the activity of collagenase. This collagenase will cause, this collagenase will cause what? Destroy the organic matrix of the bone. So it increases the osteoclastic activity of the osteoclast and it increases the efficiency of the collagenase so that bone is destroyed. Inhibits the bone formation. Okay, it is the most important effect. It inhibits the whatever materials are required for the bone formation. उसके सिंथेसिस को बंद कर देता है। मटेरियल नंबर 1 कोलाजन सिंथेसिस, उसके सिंथेसिस को बंद करता है। मटेरियल नंबर 2 ऑस्टियोब्लास्ट, दीज आर द सेल्स व्हिच आर नोन टू फॉर्म द बोन, उसके सिंथेसिस को खत्म कर देता है। अगर गलती से बंद भी किया ऑस्टियोब्लास्ट तो उसको क्या करेगा, ये एपोप्टोसिस कर देगा, है ना। उसको क्या करेगा, एपोप्टोसिस कर देगा, मीन्स डिस्ट्रक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट सेल, जेनेटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट सेल्स, एपोप्टोसिस ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स, द बोन सेल्स आर नोन एज ऑस्टियोसाइट्स। तो इस बन भी गया ऑस्टियोब्लास्ट, गलती से ऑस्टियोसाइट बन गया तो उसको एपोप्टोसिस करवा देगा। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन को रोकता है बाय एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ 125 dihydroxy vitamin D. These are present in kidney. Which these enzyme, this is present in kidney, which are important for reabsorption of calcium, but this inhibits this enzyme and impede the calcium absorption, and that's why calcium is not provided to you for the bone formation. तो इस सोर्स को भी ये खत्म कर रहा है। इट इंक्रीजेस कैल्शियम एक्सक्रीशन। अब तो कैल्शियम जो भी बोन में उसको भी एक्सक्रीट करके ये बाहर फेंक रहा है, बट यू डोंट हैव द calcium as a source, you don't have the osteoblast, you don't have the collagen, you don't have the osteocytes. Bone formation is decreased, new bone formation is decreased, right? Of course it increases the GFR also. इसीलिए अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक्सेस हो जाता है किसी को, किसी डिजीज में, कुशिंग सिंड्रोम लाइक, या फिर हम इंजेक्शन से कॉर्टिकोस्टेरॉइड किसी को दे देते हैं, उसको ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा रहता है, बोन जल्दी टूट जाएगा। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू पे मैंने बोला, चूंकि दे डिक्रीजेस द कोलाजन सिंथेसिस एंड कोलाजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द कनेक्टिव टिश्यूज लाइक फॉर स्किन, फॉर कैपिलरी वॉल। सो if there is a decrease in collagen synthesis, there will be thinning of the skin, there will be thinning of the wall of the capillaries, there will be hemorrhage, that is known as petechial hemorrhage, intracutaneous hemorrhage. किसी के स्किन पर देखे होंगे कि बहुत सारा मतलब ज़्यादातर जो भी स्किन डिजीज होते हैं बहुत सारा हेमरेज, पेटेकियल हेमरेज स्पॉट्स लाइक का नजर आ रहा है। वो स्पॉट्स है क्या? वो हेमरेज है, इंट्राक्यूटेनियस हेमरेज है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज कोलाजन सिंथेसिस एंड ड्यू टू द सम ऑफ द ड्रग्स दैट डॉक्टर्स आर गिविंग, एंड ड्रग्स आर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, राइट। वस्कुलर सिस्टम में मैंने बताया इट मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर बिकॉज इट सस्टेन द मायोकार्डियल परफॉर्मेंस, मैंने ऊपर बताया था अभी, मायोकार्डियल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। इसके पास वैसोप्रेशर इफेक्ट होता है। वैसोप्रेशर मीन्स वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़े। ठीक है। आर्ट्रियोल ज्यादा रेस्पॉन्ड करते हैं। ब्लड वेसल्स में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का कैसा इफेक्ट होता है? वैसोप्रेशर इफेक्ट। आर्ट्रियोल ज्यादा रेस्पॉन्सिव होते हैं, है ना। एग्जाम्पल कैटेकोलामाइन एंड एंजियोटेंसिन 2। डिक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ वैसोडाइलेटर प्रोस्टाग्लैंडिन। जो प्रोस्टाग्लैंडिन वैसोडाइलेशन करवाते हैं उसकी सिंथेसिस को ये बंद करता है।
अल्टीमेटली इसको कराना है क्या, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। इसीलिए इसके एब्सेंस में कॉर्टिसोल के एब्सेंस में ये जो वैसो प्रेशर का जो इफेक्ट होता है ना वो कम हो जाता है। तो इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा क्या, नहीं, ये ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, वैसो डायलिटेशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा। इसीलिए कॉर्टिसोल का डिफिशिएंसी जिसमें हो गया, सपोज एडिसन्स डिजीज, उसमें क्या होता है, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर डिक्रीज। किडनी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसा हमने बताया, जीएफआर विल इंक्रीज और डिक्रीज, इट विल डिक्रीज। There is a rapid excretion of water load because it is antagonistic to ADH, and that's why free water clearance is increased. There is an increased calcium phosphate excretion by decreasing their absorption in the proximal tubule, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या असर करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे मैंने बताया कि मूड चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ इरिटेबिलिटी, एप्रीहेंशन एंड इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, ठीक है। अगर कॉर्टिसोल नहीं हुआ, जैसा कि एडिसन डिजीज में होता है, तो क्या होगा, मूड चेंजेस, इरिटेबिलिटी, एप्रीहेंशन, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू ऑल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी स्टिमुलाई। मतलब ये क्या करता है ना कि मूड को स्टेबलाइज करता है, ये इम्पल्स को स्टेबलाइज करता है, बहुत ज़्यादा जरूर से ज़्यादा इम्पल्स को होने से रोकता है। तो अगर कोई सेंसरी ऑर्गन पर ये कंट्रोल नहीं है कॉर्टिसोल का, तो वो जरूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। ऑल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी, जरूरत से ज़्यादा तुम कम नमक को भी लगेगा तुमको, यार बहुत एडिशन डिजीज वाले को लगता है ना कि हम लोग घर का खाना भी खाते तो लगता है उसको कि यार बहुत ज़्यादा नमक डाल दिए हो, और नॉर्मल आदमी खाते हो तो लगता है कि यार ये तो ठीक है, तुम क्यों बोलो ज़्यादा नमक खा रहे हो, बिकॉज कॉर्टिसोल डिफिशिएंसी है ना। कहीं का हल्का स्मेल, हल्का रोज का स्मेल भी उसको लगेगा यार बहुत कंसंट्रेटेड स्मेल है, बिकॉज आपके रिसेप्टर्स पर, आपके सेंसरी रिसेप्टर पर कॉर्टिसोल का कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है। ईजी वेव स्लोअर देन नॉर्मल, ईजी वेव स्लोअर होगा, लेकिन एक्सेस कॉर्टिसोल हो गया तो क्या होगा, एक्सेस कॉर्टिसोल हो गया तो देयर विल बी इंक्रीज इन ब्रेन एक्साइटेबिलिटी, इंसोम्निया, है ना। तो आदमी को नींद नहीं आएगी, एक्साइटेबिलिटी हो सकती है, मेमोरी फंक्शन में कमी आ सकती है, ठीक है। और डिक्रीज थ्रेशोल्ड फॉर द कन्वर्सन एक्टिविटी। व्हाट इज कन्वर्सन एक्टिविटी, जिसको बोलते हैं हिंदी में चमकी बोलते हैं, सीजर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सीजर क्यों होता है, अगर ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया तो ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट्स होते हैं, ये कहा गया है। एस्टाइलकोलिन हो, चाहे ब्रेन में कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो, वो सब ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, और उनके सीक्रेशन होने की वजह से ब्रेन में जो नर्वस इम्पल्स होते हैं वे बढ़ जाते हैं, एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल। तो उस समय क्या होगा, सीजर आएगा, कन्वल्सन्स आएगा, तो वो होता है ना। थोड़ा सा भी इम्पल्स आएगा तो उस पर सीजर आने लगेगा, क्योंकि कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ये कॉर्टिसोल क्या करता है, उस इम्पल्स को कंट्रोल करने रहता है, लेकिन कॉर्टिसोल एक्सेस हो जाने पर क्या होगा, आप छोटा सा भी अगर इम्पल्स आएगा तो वो एबनॉर्मल इम्पल्स में बदल सकता है, और कन्वर्सन एक्टिविटी को दे कैन गिव राइज टू कन्वर्सन एक्टिविटी। इसीलिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम लोग इपिलेप्सी वही बोलते हैं, डिजीज जिसमें कन्वर्सन्स या चमकी बहुत आते हैं, उनमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होने देते हैं। खासकर जो चमकी बुखार होता है, जो बच्चे में जो होता है, अभी हम लोग को मुजफ्फरपुर में बहुत ज़्यादा है, उसमें कॉर्टिकॉइड देने से भी लोगों का बहुत क्या होता है कि बस भाई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या स्टेरॉइड्स चढ़ा दीजिए बच्चे, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ जीआईटी, देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इट विल इंक्रीज द गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इससे क्या होगा, परफोरेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक गैस्ट्रिक सिक्रीशन से वो जो हमारा बैरियर जो है ना, म्यूकोसल बैरियर, उसको डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो, और उसकी वजह से हम लोग को पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड का कि एक्सेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कैन कॉज स्नोपीनिया और बैसोपीनिया। याद रखो, सिर्फ स्नोपीनिया और बैसोपीनिया और लिम्फोपीनिया होता है, बाकी सब बढ़ा हुआ रहता है। स्नोफिल, बैसोफिल और लिम्फोसाइट्स ये कम होगा, बाकी सब न्यूट्रोफिलिया, पॉलीसाइथेमिया, इंक्रीज ब्लड आरबीसी, इंक्रीज प्लेटलेट, सब कुछ बढ़ा रहेगा, लेकिन सिर्फ लिम्फोपीनिया, स्नोपीनिया और बैसोपीनिया, ये क्वेश्चन तो आया हुआ है,
पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एंटी इन्फ्लामेटरी। हम लोग जो बोल रहे थे कि हम लोग का बॉडी जो है इट यूजेस द कॉर्टिसोल और द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी, एंड ऑफ कोर्स बाहर से हम लोग किसी इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए भी इंजेक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। ओके, तो how does it affect? First of all, you have to understand that there is a transcription factor. There is a transcription factor. This transcription factor is present in the DNA or the gene. These are known as activation of nuclear factor kappa beta. ये बहुत बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ चुका है, ये न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बीटा बहुत बार आ चुका है, ठीक है। ये जो होता है इट इनहिबिट्स द एक्टिवेशन ऑफ दिस, यू कैन से इट एंजाइम और अ फैक्टर, न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बीटा, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ आई के बीटा ए, ठीक है। तो व्हाट इज दिस मॉलिक्यूल? ये आई के बीटा ए जो होता है इससे बाउंड रहता है इनके न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बीटा, ठीक है। न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बीटा इज अ transcription factor which normally exists in cytosol and that is bound to the IKBA, ठीक है, which makes it inactive। जब तक NF-K बीटा IKBA से जुड़ा रहेगा तब तक NF-K बीटा क्या रहेगा? इनएक्टिव रहेगा। और जब भी कोई इन्फ्लामेटरी सोर्स तो आपके बॉडी में आया, जैसे कि वायरस, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि साइटोकाइन या फिर ऑक्सीडेंट इंड्यूस्ड सिग्नल, तो ये सब क्या करते हैं? इस NF-K बीटा और IK बीटा के एसोसिएशन को डिसोसिएट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तब NF-K बीटा क्या हो गया? फ्री फॉर्म हो गया। अब ये फ्री फॉर्म जो NF-K बीटा है दैट मूव्स इनटू द न्यूक्लियस एंड बाइंड्स टू DNA। ओके, okay, so so these glucocorticoids decreases the inhibit the activation of the nuclear factor kappa beta by increasing the production of IK beta. So more IKBA is synthesized, more and more it will bind to the nuclear factor kappa beta, which is important for the inflammation. So when it binds to the nuclear factor kappa beta, so nuclear kappa beta is not free to cause inflammatory reactions, and that's why there is a anti-inflammatory actions, है ना। होता क्या है? अगर NF-K बीटा का काम क्या है ये देखते हैं। NF-K बीटा will move to the nucleus, अगर फ्री होता तो it will move to the nucleus, binds to the DNA and transcripts the numerous inflammatory inflammatory protein or mediator, resulting in increased production and increased inflammation। तो ये NF-K बीटा करवाता है अगर वायरस, बैक्टीरिया, साइटोकाइन आ गया तो, लेकिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है? इतना ना IKBA को सिंथेसाइज कर देता है कि दैट विल बाइंड टू द NF-K बीटा, है ना, और उसको फ्री फॉर्म में छोड़ेगा ही नहीं। तो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। दूसरा एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट क्या होता है कि इट इनहिबिट्स द एक्टिविटी। एक सेकेंड, ओके, नाउ cortisol inhibits the activity of phospholipase agent. Now phospholipase agent is very important, you know. It is responsible for arachidonic acid product. मेम्ब्रेन में होता है phospholipase A2। phospholipase A2 से arachidonic acid product बनता है कौन कौन? प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन, and they are important component for inflammation, mainly the vascular component. थ्रोम्बोक्सिन वैसोडाइलेटेशन करवाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन वैसोडाइलेटेशन करवाता है, प्रोस्टासाइक्लिन वैसोडाइलेटेशन करवाता है, रेडनेस करवाता है। देखो इन्फ्लामेशन का 4 साइन है, रूबर, डोबर, कैलोर, है ना, मतलब रेडनेस, हीटिंग, स्वेलिंग, है ना, ये सब पार्ट है इन्फ्लामेशन का। और ये जो थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टासाइक्लिन है, ये
वेसोडाइलेशन करवाता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करवाता है, ठीक है। इसके प्रोडक्शन को रोकेगा, क्योंकि इसका प्रोडक्शन किससे होगा, एराकिडोनिक एसिड से। एराकिडोनिक एसिड का प्रोडक्शन किससे होगा, फॉस्फोलाइपेज A2 से। तो फॉस्फोलाइपेज A2 की एक्टिविटी कौन इनहिबिट कर रहा है, कॉर्टिसोल। इसका मतलब कॉर्टिसोल इनडायरेक्टली इन सभी प्रोडक्ट को सिंथेसिस को कम कर रहा है, इसका मतलब इन्फ्लामेशन कम कर रहा है, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट एंड द, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉर्टिसोल स्टेबलाइजेज द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन by inhibiting phospholipase A2 can also cause destruction of the lysosomal membrane, and after the lysosomal membrane is destroyed, the product present in it like hyaluronidase, proteolytic enzyme will come out and they will cause the damage, swelling, means inflammatory action. अगर इसी फॉस्फोलाइपेज A2 को फिर से इनहिबिट कर दिया गया तो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन स्टेबलाइज रहेगा, नहीं टूटेगा, हेंस नो इन्फ्लामेशन रिएक्शन, राइट। कॉर्टिसोल इनहिबिट्स द माइग्रेशन ऑफ सर्कुलेटरी ल्यूकोसाइट टू द साइट ऑफ द इन्फ्लामेशन, ब्लॉक करता है। इट इनहिबिट्स ल्यूकोट्राइंस T होता है, ल्यूकोट्राइंस B4 T4 ल्यूकोट्राइंस होता है, बहुत सारे ल्यूकोट्राइंस होते हैं, ये सब का काम है इन्फ्लामेशन में हेल्प करना, उसको इनहिबिट करता है। कोलाजन फॉर्मेशन को कॉर्टिसोल डिक्रीजेस, जो कि देखो कोलाजन और फाइब्रोब्लास्ट, ये जो कोलाजन देखे है ना, कोलाजन और फाइब्रोब्लास्ट, ये जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन। देखो क्रोनिक और एक्यूट इन्फ्लामेशन है दैट यू विल रीड इन पैथोलॉजी in the second year, but for now you have to know the acute and chronic inflammation means acute means जो कि तुरंत हुआ, और क्रोनिक मीन्स धीरे धीरे होता है। तो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स क्या होता है, किसी मान लो तुमको कोई घाव कट गया, वहां पर एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ तुरंत, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि तुम्हारा घाव सूखता है, क्लॉट बनता है ना, और धीरे धीरे वो बाद में वो कवर जो बनता है क्लॉट का, वो धीरे धीरे घाव सुधर जाता है, फिर उसके बाद वार्ड ऑफ हो जाता है। तो ये जो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स उसी को बोलते हैं जो एक्यूट के बाद आता है। इसमें उस वुंड को क्लियर करने का प्रोसेस होता है, जो कि एक महीना लेता है, ऐसा नहीं 1 महीना 3 महीना लेता है, लेकिन एक्यूट तो मात्र तुमको आधा 1 घंटा में अंदर में ही हो जाएगा वो एक्यूट, है ना। तो उस क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के दौरान ये कोलाजेन है और फाइब्रोब्लास्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि कॉर्टिसोल, अगर किसी को वुंड है और कॉर्टिसोल दे रहे हैं तो भैया वो वुंड जल्दी से हील नहीं होने वाला है ना। देखो अब इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स का एक हम आइडिया बता देते हैं कैसे होता है। देयर विल प्रोडक्शन ऑफ PAF, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, दैट विल कॉज वैसोडाइलेटेशन, परमिएबिलिटी, वैसोडाइलेटेशन होगा, परमिएबिलिटी होगा तो ब्लड वेसल से अंदर से बाहर क्या निकलेगा, ऊज आउट होगा, प्लाज्मा होगा। इसलिए तुम देखते हो जहां पर चोट लगता है ना, जहां पर वुंड होता है वहां पर फुला हुआ रहता है ना। ये जो फुला हुआ क्यों है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज परमेबिलिटी, ल्यूकोसाइट ट्रैपिंग हो जाता है, वहां पर पस जम जाता है ल्यूकोसाइट का जब वो मर जाता है तो, है ना। तो दैट इज द प्रोसेस। नाइट्रिक ऑक्साइड भी यही काम करवाएगा। दूसरा है प्रोसेस कि हमारा मेम्ब्रेन से फॉस्फेटिडाइल कोलिन को लेगा, फॉस्फेटिडाइल को फॉस्फेटिडाइल A2 से एराकिडोनिक एसिड बनेगा, एराकिडोनिक एसिड से साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे होता है, ये लॉक्स पाथवे, ये कॉक्स पाथवे, इसको कॉक्स पाथवे बोलते हैं, COX, इसको बोलते हैं लॉक्स पाथवे। कॉक्स पाथवे क्या बनाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन, और लॉक्स पाथवे क्या बनाएगा, ल्यूकोट्राइंस, ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन वही काम करवाएगा, वैसोडाइलेशन, इंक्रीज परमिबिलिटी, ल्यूकोसाइट ट्रैपिंग, और ल्यूकोट्राइंस क्या करवाएगा, न्यूट्रोफिल फंक्शन, फैगोसाइटोसिस, बैक्टीरियली। अब देखो जहां जहां बॉक्स है वहां कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स काम करता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड यहाँ पर काम करके इनहिबिट करता है इस प्रोसेस ब्लड PAF को, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड को इनहिबिट करेगा, यहाँ पर फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करेगा, यहाँ पर साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे को इनहिबिट करेगा, यहाँ पर ल्यूकोट्राइंस को न्यूट्रोफिल फंक्शन करने से रोकेगा। तो ये सब चीज करने से ये सारा जो है इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स वो नहीं होगा, राइट। एंटी इम्यूनिटी इफेक्ट देखो, इट इनहिबिट्स बोथ सेलुलर T सेल, ह्यूमोरल B सेल प्रोडक्शन। कैसे देखते हैं यहां पर, देखो कोई भी एंटीजन हमारा आता है, जैसे मान लो कोरोना वायरस का ही आ गया, किसी का आया,
वो एंटीजन को हमारा मैक्रोफेज जो है वो खाने की कोशिश करेगा, फैगोसाइटोसिस। उसके बाद वो कुछ इंटरलोकिन जो है, साइटोकाइन इंटरलोकिन, उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो उसमें से इंटरलोकिन 1 जो होता है वो ब्लड में जाता है और यही फीवर कॉज करवाता है। फीवर इज वन ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द योर इम्यूनिटी। अगर आपको फीवर हो रहा है इसका मतलब कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है। इसीलिए हम लोग अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये बोलते हैं कि फीवर अगर 100 से या 100 से ऊपर रहे ना तभी पैरासिटामोल लीजिए। 100 के नीचे रहे, 99, 99 रहे, मत लीजिए। क्योंकि आप जब 99 में ही, 98 में ही पैरासिटामोल ले रहे, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू इनहिबिट, try to stupefy your immune system. Why to do this? Fever means your immune system is all right, guys. Let your immune system work. Let the fever happen. Okay. So इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 100 से ऊपर है तभी फीवर को कम कीजिए, बाकी अंदर है तो कोई दवा देने की जरूरत नहीं है। Let your immune system work. Let them revise their procedures, right? So interleukin 1 is responsible for the fever. This interleukin 1 also causes activation of the T cells, and this activation of T cell will give tumor necrosis factor TNF alpha, which is important for the this immunity. Okay, and this T cell will give interleukin 2 and 6. See, macrophage give interleukin 1, but T cell will give interleukin 2 and 6, and this interleukin 2 and 6 will again cause T cell B cell formation and hence antibody production. अब देखो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो कहाँ कहाँ स्टॉपेज करता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यहाँ इस स्टेप पर गलती से बन भी गया, इसको यहाँ स्टॉपेज करेगा, फीवर उसको नहीं आएगा, इंसान को लगेगा। इसलिए कभी कभी डॉक्टर्स लोग ना, ये बोलना नहीं चाहिए, बट कभी कभी कोई क्वैक लोग जो होते हैं ना गाँव में, नॉट डॉक्टर्स, सॉरी, क्वैक लोग जो होते हैं वो स्टेरॉइड्स बहुत यूज़ करते हैं। बंदा का फीवर नहीं आएगा, अरे फीवर ठीक हो गई है ना, मेरा इन्फ्लामेशन ठीक हो गया है, घाव मेरा जो है वो बना ही नहीं, क्योंकि घाव बनना और घाव सुधरना, दैट इज इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। यू आर नॉट अलाउिंग योर इम्यूनिटी टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ योर घाव, है ना। एंड दैट्स वाई उनको लगता है कि हम ठीक हो गए, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ रेडनेस सब कुछ चला गया, ये सब कुछ नहीं है, फीवर भी नहीं हुआ, तो लोग गुड फील होता है। इसलिए मिसयूज होता है कभी कभी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, ठीक है। हाँ, लेकिन कभी कभी लोग यूज करते हैं इसको, इम्यूनिटी, ओवर इम्यूनिटी नहीं हो, क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी नहीं हो, उस ऑटो इम्यूनिटी डिजीज में हम लोग जनरली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज करते हैं, ठीक है। ये सब चीज जो बता रहा है ना, ये सब ज़्यादा होने से, ज़्यादा प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड होने से ये सब होता है, नॉर्मल में नहीं होता है, ठीक है। एंटी एलर्जिक इफेक्ट भी है बाबू इसका, ठीक है, एंटी एलर्जिक इफेक्ट। इट रिड्यूसेस नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग बेसोफिल एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द सी। बेसोफिल हैव व्हाट? अगर बेसोफिल को तुम तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? हिस्टामाइन, एंड हिस्टामाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? एलर्जी रिएक्शन। It reduces the number of circulating basophil and protects against the release of secretory products of granulocytes, mast cells, macrophage, which have vesicle containing serotonin, histamine, hydrolase. These are all important for your allergic effect. ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। For the in a fetal life, बच्चे में cortisol बहुत important है, क्योंकि ये CNS, रेटिना, स्किन को डेवलप करता है। लंग्स के मैच्योरेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि हम पाएंगे कि कॉर्टिसोल जो होता है बर्थ में 28 वीक के अराउंड, ये बच्चे में सर्फेक्टेंट्स को ही प्रोड्यूस करता है ना। द लास्ट वीक ऑफ गेस्टेशन, द प्रिपरेशन ऑफ द फीटल लंग्स टू परमिट सेटिस्फैक्टरी ब्रीदिंग इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ इज फैसिलिटेटेड बाय कॉर्टिसोल। इसलिए कभी कभी माँ को हम लोग कॉर्टिसोल का इंजेक्शन भी दे देते हैं, ताकि उसका बच्चा का जो लंग्स है ना वो अच्छे से मैच्योर, या जिसका मैच्योर नहीं रहता उसको और कॉर्टिसोल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लाइक किसी को मान लो प्रीटर्म हो रहा है ना, उसका 9 मंथ तक गेस्टेशन गया ही नहीं, तो हम जानते हैं प्रीटर्म हो रहा है तो उसका लंग इमैच्योर हो गया, तो उसको मैच्योर करने के लिए हम लोग कॉर्टिसोल कभी कभी इंजेक्शन में लगाते हैं प्रेग्नेंट लेडीज को, ठीक है। तो दिस cortisol by increasing the activity of the key enzyme phosphatidyl acid phosphatase and choline phosphotransferase, which are involved in biosynthesis of pulmonary surfactant,
And pulmonary sulfur, as you know, it decreases the surface tension of the pulmonary alveoli and permits the proper inflation of the lungs immediately after the burst. Okay, this is about the maturation of lung. Important, cortisol is important. GIT tract fetal life में भी उसको भी मैच्योर करता है. This maturation of process allows the newborn to digest disaccharide present in the milk, है ना. तो उस म्यूकोसा को इस तरह करता है कि वो डाइसैक्राइड को भी डाइजेस्ट कर पाए बच्चा. म्यूटेशन ऑफ मैच्योरेशन ऑफ द GIT. स्ट्रेस में तो इसका यूज है ही. सो दे आर मैनी मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन. स्ट्रेस में क्या यूज है? Various stresses, example trauma, cold, illness, starvation, and associated with activation of the hypothalamic hypophyseal axis, increased secretion of the glucocorticoid is one of the various mechanisms involved in adaptation of the various stresses. So, glucocorticoid is important for your adaptation of the stressful situation. ठीक है? It is important to note that the resistance to the stress is not increased by the administration of glucocorticoids. How cortisol helps against this stressful condition is not exactly clear. ठीक है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है 31 मिनट हो गया है. We will stop here. Okay, I'll make another slide for this regulation of the glucocorticoid secretion, right?